Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. This is your science teacher Mansha, and today we will revise chapter number 15 of science of grade 7, that is light. Okay students, today we will revise the chapter of light. Okay, the topics that we will cover in this chapter are: number 1, light; number 2, reflection of light; number 3, types of reflection; number 4, laws of reflection; number 5, mirrors; number 6, lenses; number 7, dispersion of light; number 8, formation of rainbow; and number 9, or the last topic of this chapter, is Newton disk, students. Okay, we have already started this chapter on Zoom classes. Okay, so all the students should take the Zoom classes regularly, and this is a recap of the chapter with a quick view. Okay, let me start with the chapter first. Light. Basically, what is light? Everybody knows about light, but what is light? Exactly how we will define light? Light is a form of energy. We can simply say light is a form of energy. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे हम बहुत सारे एनर्जी के टाइप्स पढ़ चुके हैं. वी हैव हर्ड अबाउट मस्कुलर एनर्जी, वी हैव हर्ड अबाउट हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो लाइट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्लियर टू यू? उसके अलावा बेटा नेक्स्ट क्या है? विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ विजन. अंडरस्टैंड दिस. ओके, लाइट क्या है? एनर्जी का एक प्रकार है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं. ठीक है, लाइट हमें एक विजिबिलिटी पावर देती है. लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं. वी आर अनेबल टू सी. तो हाउ वी विल डिफाइन लाइट स्टूडेंट्स? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ विजन. मतलब लाइट क्या? एनर्जी का एक प्रकार है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं. क्लियर टू यू? ओके, नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, that is reflection of light. Now we will cover the topic reflection of लाइट. रिफ्लेक्शन की बात करें तो बेटा रिफ्लेक्शन बहुत सारी जगह होता है. आपने वाटर में भी रिफ्लेक्शन देखा है. आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, ग्रीडी डॉग. ओके, ग्रीडी डॉग में स्टोरी में क्या होता है? अ डॉग वाज क्रॉसिंग अ रिवर. एक जो डॉग होता है रिवर को क्रॉस कर रहा है. ही वाज क्रॉसिंग द ब्रिज ओवर द रिवर. ठीक है, एंड ही हैज़ अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज माउथ. तो उसके हाथ में उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा होता है. सडनली ही लुक इन टू द रिवर. वो अचानक ही रिवर में देखता है तो उसे वाटर में अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है. यूज्ड टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर एंड ही थॉट another dog was there. Okay, and he start barking at the dog. वो जो है दूसरा सोचता है कि वाटर में अपनी रिफ्लेक्शन को देख के कि कोई और डॉग है, और वो उस डॉग पे भौंकना शुरू कर देता है. and his piece of bread falls into the river. Okay, तो यहाँ पे क्या है? वाटर रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि, और उसकी ग्रीडनेस की वजह से क्या होता है? he lost his piece of bread. Okay, but now in this chapter we will talk about reflection of light. Okay, reflection of light क्या होता है बेटा? Reflection of light is a phenomena of bouncing back of light after striking a surface. I will repeat for you. Reflection of light is a phenomena of bouncing back of light after striking a surface. Reflection में क्या होता है? कोई भी light ray किसी भी surface से टकराकर जब वापस आ जाती है तो that phenomena is known as reflection of light. Okay, now I will draw the diagram for reflection of light. Okay beta, now I will understand the concept of reflection of light with the help of a diagram. Okay, in this diagram I have taken a smooth and shiny surface such as a mirror. Okay, I have taken a smooth and shiny surface such as a mirror. Okay, and I have incident a light ray from any source. Okay, I have incident a light ray from any source. The source can be a tube light, a torch light, it can be a sunlight or whatever available. ठीक है, तो यहाँ से जो है लाइट आ रही है. ठीक है, and this ray is known as, incoming ray is known as incident ray students.
This ray is known as incident ray. Okay, now this light ray will strike the surface, that is a mirror I have taken, and it will bounce back. This light ray will bounce back. Okay, so light ray which will bounce back is known as reflected ray. Okay, this ray is known as reflected ray. जो reflection के बाद हमें ray obtained होती है, that ray is known as incident ray. और जो source की side से ray आ रही है light source से, that is incident ray. ठीक है, and this is an imaginary ray. जो हम अपनी calculations के लिए या फिर measurement purpose के लिए हम mathematically एक construction कर रहे हैं, यहाँ पे एक imaginary ray draw कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं normal. This ray is known as normal. ठीक है, listen again. The ray coming from the light source is known as incident ray. Ray reflected after striking the surface, that such as a mirror, is known as reflected ray. And ray drawn perpendicular to the surface. And ray drawn perpendicular means at an angle of 90 degree. Okay, the ray drawn perpendicular to the surface is known as normal. Okay, now we will talk about angle of incidence and angle of reflection. Okay, beta, the angle between incident ray and normal. Okay, this is incident ray, this is normal. तो इसके बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डिनोटेड बाय सिंबल आई, स्मॉल आई. ओके, एंड द एंगल between reflected ray and normal, and the angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection, denoted by a symbol small r. So this is angle of incidence and this is angle r, angle of reflection. So beta, this is the basic diagram of reflection. ठीक है, तो यहाँ पे इस बेसिक डायग्राम ने कुछ चीज़ें शो की हैं, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, angle of incidence, angle of reflection, and we have taken a smooth and shiny surface such as a mirror. Okay, this is the concept of reflection. Now students, we will move to our next concept. Okay, next topic जो अब हम पढ़ेंगे, that is types of reflection. The next topic I am going to discuss is types of reflection. ठीक है, अभी तक हमें क्लियर हो चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. आई विल रिपीट फॉर यू गाइस. रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस. ओके, नाउ वी विल कम टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स. रेगुलर रिफ्लेक्शन, number 1 regular reflection, number 2 diffuse reflection. Okay, first understand this, what is regular reflection and what is diffuse reflection. Regular reflection क्या होता है बेटा? Regular reflection में जितनी भी light rays आ रही हैं, वो जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं सोर्स से, वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल ही चली जाती हैं. और यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बेटा, वो किसी भी स्मूथ और शाइनी सरफेस से ही होता है, सच एज वी विल टेक अ मिरर हेयर. ठीक है, कोई भी स्मूथ और शाइनी सरफेस होगा तब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. लेकिन अगर बात करें हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है बेटा, वो रफ, इरेगुलर और ऐसे सरफेस की वजह से होता है जिसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं. और इसमें क्या होता है, जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्राइंग द डायग्राम फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन. These are the incoming rays, these are the incoming light rays. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे मैंने आपको बताया स्मूथ और शाइनी सरफेस से होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी इनकमिंग रेज आई हैं वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल ही चली जाएंगी. ठीक है, तो इस तरह की रिफ्लेक्शन जिसमें जितनी भी रेज आ रही हैं रिफ्लेक्ट होके पैरेलल चली जाएं और स्मूथ और शाइनी सरफेस से हो, उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है वो किसी भी इरेगुलर सरफेस की वजह से होता है या रफ सरफेस की वजह से होता है. और इसमें जितनी भी पैरेलल इनकमिंग रेज आती हैं रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड अप हो जाती हैं.
Okay, listen again. Regular reflection occur from smooth and shiny surface. All the parallel incoming rays reflect and goes parallel. Okay, in diffuse reflection, all the parallel incoming rays spread in different direction due to irregularities of the surface. Okay, I thought this topic will be clear to you. Types of reflection: regular and diffused. Now we will move to our next topic, that is laws of reflection. Okay, now we will start our next topic, that is laws of reflection. There are two laws of reflection, students, first law and second law. Okay बेटा, there are two laws of reflection. Okay, reflection का concept हम समझ चुके हैं. Types of reflection we know, regular and diffuse. Now we will come to laws of reflection. There are two laws of reflection. Number one law, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. जैसे हमने रिफ्लेक्शन के डायग्राम में तीन रेज बनाई थी, एक हमारी इंसिडेंट रे थी, एक रिफ्लेक्टेड रे थी और एक नॉर्मल थी. तीनों क्या होती हैं बेटा, एक ही प्लेन में होती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in same plane. Okay, this is our first law कि ये जो तीनों रेज होती हैं हमारी एक ही प्लेन में होती है. प्लेन की बात करें तो मैथमेटिकली सपोज एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में ही रहेंगी लाइट रे, वाई जेड प्लेन में है तो वाई जेड में रहेगी, या हमारी एक्स जेड में है तो एक्स जेड में, एक ही प्लेन में हमारी लाइट रहेगी. ठीक है, और सेकेंड लॉ क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, that is angle I is equal to angle of reflection, that is angle R. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है. एंड बोथ द एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. ठीक है, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता. रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिरर्स. Now we will move to our next topic, that is mirrors. बेटा मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स आर स्मूथ एंड शाइनी सर्फेसेस विच शोज रिफ्लेक्शन. मिरर्स जो होते हैं स्मूथ और शाइनी सर्फेसेस होते हैं जो रिफ्लेक्शन शो करते हैं. जैसे आपने देखा होगा मिरर का जो एक साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और बैक वाली साइड पे देयर इज अ कोटिंग और पॉलिश. ओके, तो मिरर जो होते हैं बेटा हमारे दो तरह के होते हैं बेसिकली, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर. ठीक है बेटा, मिरर्स हमारे दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर. आगे स्पेरिकल मिरर भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर. ठीक है, स्पेरिकल मिरर्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर. ठीक है, तो फटाफट से इनका रिकैप करेंगे. सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मिरर्स जो होते हैं स्मूथ और शाइनी सर्फेसेस होते हैं जो रिफ्लेक्शन शो करते हैं. ठीक है, और टाइप्स की बात करें तो प्लेन और स्पेरिकल मिरर्स होते हैं. स्पेरिकल मिरर के आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर. ठीक है, जो प्लेन मिरर्स होते हैं बेटा उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सर्फेस में बिल्कुल प्लेन होते हैं और एक सरफेस, एक साइड उनकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, दूसरी साइड पे पेंट होता है. एक सरफेस जो उनका होता है रिफ्लेक्टिंग होता है. दिस टाइप ऑफ मिरर, दिस इज अ डायग्राम फॉर अ प्लेन मिरर. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पेरिकल मिरर. जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, स्पेरिकल जो मिरर्स होते हैं वो कर्व शेप के होते हैं. इंस्टेड ऑफ बीइंग प्लेन दे आर कर्व्ड शेप्ड. ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे स्पेरिकल मिरर्स की, कन्वेक्स मिरर की. तो जो कन्वेक्स मिरर होता है बेटा उसका जो आउटर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, उसका जो आउटर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और इनर पार्ट पॉलिश्ड होता है. ठीक है, तो ये कौन सा मिरर है जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, वो होता है कन्वेक्स मिरर, और जिसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है. ठीक है, अगर हम बात करेंगे कनकेव मिरर की तो ये जो है इसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है.
and outer part is polished. ठीक है, तो this type of mirror is a concave mirror. Listen again. जो हमारे कन्वेक्स मिरर होते हैं उनका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है और कनकेव मिरर जो होता है उनका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है. जैसे आपने स्कूल में भी हमारे मैजिकल मिरर्स देखे हैं ना, देयर इज नो मैजिक इनसाइड देम, दे आर जस्ट कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर शोइंग डिफरेंट इमेजेस यू, समटाइम बिगर, समटाइम स्मॉलर, समटाइम थिकर एंड थिनर. ओके, तो दीज आर द convex and concave mirror in which different type of images are formed. Okay students, now move to our next topic of lenses. Now we will move to the lenses. उसी तरह बेटा क्या lenses क्या होते हैं? Lenses are combination of two mirrors. जो हमारे lenses होते हैं वो दो mirrors का combination ही होते हैं. ठीक है, lenses हमारे दो तरह के होते हैं, दो टाइप के lenses होते हैं हमारे, convex and concave. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम कन्वेक्स लेंस की. कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जो दो कन्वेक्स मिरर को जोड़ के बनता है. जैसे मैंने आपको बताया लेंसेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स. तो कन्वेक्स मिरर में क्या, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, हम दो कन्वेक्स मिरर्स को कंबाइन करते हैं. लेट्स सी हाउ. इस तरह लाइक दिस वी कंबाइन टू कन्वेक्स मिरर एंड दिस बिकम्स अ कन्वेक्स लेंस. जैसे आपने देखा लेंस जो होते हैं नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होते हैं विच अलाउ ऑल द लाइट रेज टू पास थ्रू them. Okay, this is and thus when two concave mirrors are joined, ठीक है, when two concave mirrors are joined, such a lens is known as concave lens. Okay, these are the diagrams for convex and concave lens. Clear to you students? Okay, now we will move to our next topic, that is dispersion of light. Now we will move to the next topic, that is dispersion of light. New topic to you. Okay, जैसे हमने दो प्रॉपर्टीज लाइट की पढ़ चुके हैं. एक हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी थी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. 6 में भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. दूसरी एक प्रॉपर्टी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, दैट लाइट reflect back after striking a surface. Now we will study about dispersion of light. Dispersion of light is a phenomenon of splitting up of white light into 7 colors. जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि जो white light होती है that is composed of 7 colors. ठीक है, तो dispersion में क्या होता है, जब ये 7 कलर, ये जो white light होती है अपने 7 component colors में जब split हो जाती है, this phenomena is known as dispersion of light. And these colors are represented by a word. You have to remember this word, Vibgyor. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. ओके बेटा, तो यहाँ पे ये जो 7 कलर्स होते हैं, वाइट लाइट इन्हीं 7 कलर्स से बनी होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ओके, नाउ वी विल कवर द टॉपिक ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट. सो बेटा डिस्पर्शन में क्या होता है, व्हेन अ वाइट लाइट पासिस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. ठीक है, जब कोई भी वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होती है, दिस इज वाइट लाइट. When it passes through a glass prism, it's split up into its 7 component colors. Okay, when a white light passes through a glass prism, it's split up in its 7 component colors. Okay, ठीक है, it's split like this into its 7 component colors. This phenomena of splitting of white light into 7 colors, and what are these colors? These are written by word Vibgyor. The colors I told you, that is violet, indigo, blue, green, okay, yellow, orange and red. ठीक है, तो splitting of white light when it is passed through a glass prism. ये जो glass prism होता है बेटा, this is triangular in shape and made of glass. Okay, so when white light passes through a glass prism, it's split up into its 7 component colors. This phenomena is known as dispersion of light. Now we will move to the next topic, that is formation of rainbow. Okay, we will move to next topic, that is formation of
रेनबो। बेटा रेन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन। ये जो रेनबो फॉर्म हो रहा है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। नॉर्मली आपने देखा है कई बार रेनफॉल होती है, रेनफॉल होने के बाद सन अपीयर्स एंड सनलाइट कम्स। ठीक है, ये जो सनलाइट होती है ये वाटर की ड्रॉपलेट्स, ये जो सनलाइट होती है ये वाटर की ड्रॉपलेट्स में से पास होती है और पास होने के बाद 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। ओके, ठीक है, तो ये जो वाइट लाइट होती है वाटर ड्रॉपलेट से पास होने के बाद 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। ओके, तो और ये जो 7 कंपोनेंट्स कलर होते हैं कौन कौन से बेटा? विबग्योर, वी विल रिमेंबर दिस वर्ड, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ये हमें स्काई में दिखाई देते हैं। दीज ब्यूटिफुल कलर्स looks in the sky after dispersion of white light through रेन ड्रॉप्स या रेन ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये जो वाइट 7 कलर्स होते हैं रेनबो की फॉर्म में हमें स्काई में दिखाई देते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डू इज लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, न्यूटन्स डिस्क। Newton disk, better this activity of Newton disk you can perform at your home also, very simple activity also. Okay, before that I will tell you about great physician, that is Sir Isaac Newton. He was a great physician और scientist. ठीक है, इन्होंने इनका फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है, इन्होंने मोशन के कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया है, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है और बहुत सारी जगह पे इनका कंट्रीब्यूशन है फिज़िक्स में। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक डिस्क बनाई थी टू रिप्रेजेंट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। दैट डिस्क इज़ नोन एज बाय हिज नेम, दैट इज़ न्यूटन डिस्क। ये डिस्क कैसे होती है बेटा? इट इज़ सर्कुलर इन शेप, ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 7 कंपोनेंट्स कलर्स। और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं? जो हमारे रेनबो में होते हैं या वाइट लाइट के ही जो कलर्स होते हैं। ओके, दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरह की आप पेपर का यूज़ करके या कार्डबोर्ड का यूज़ करके इस तरह की आप न्यूटन डिस्क भी बना सकते हैं और इसे डिफरेंट कलर से पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब आप इस डिस्क को रोटेट करेंगे बच्चों, जब आप डिस्क को रोटेट करेंगे तो आपको इन 7 कलर्स की जगह, इसको रोटेट आपने बहुत ही स्पीडली करना है, या यू कैन यूज़ अ टॉय मोटर और यू कैन क्रिएट अ फिरकी लाइक स्टफ, you can use a pencil in middle to rotate it, but you have to rotate it speedily. तो आपको इन 7 कलर्स की जगह सिंगल वाइट लाइट दिखाई देगी। Why? Because white light is composed of these 7 colors. ठीक है, तो this Newton disk represents the phenomena of dispersion of light. This is all for the chapter. Okay, we have a quick recap of the chapter of light. I hope the topics are clear to you. Okay students, so you attend your classes regularly and stay at home, be safe and keep learning with me. Thank you.